accounts of the rapture are found in the New Testament. Not all of us will die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the twinkling of an eye. For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout and with the trumpet call of God. First, all the Christians who have died will rise from their graves. Then together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air and remain with him forever. For all of its mystery, perhaps the most compelling aspect of the rapture is its imminence. It could literally occur at any moment. And as the scriptures tell us, there will be no doubt when that moment arrives. The entire planet will be shaken by a thunderous shout and a piercing trumpet blast. Then, in cemeteries around the world, graves will split open, and Christians who have died will rise from the ground, not as decaying flesh and bone, but as living human beings with transformed bodies ready to meet Christ in the air. An instant later, millions of people from every walk of life will vanish as they too will encounter their Lord between heaven and earth. Regardless of age or nationality, every man, woman, and child who is taken has one thing in common. Each of them believe that Jesus Christ is the Savior of the human race. In the hours immediately following the rapture, a panic-stricken world will attempt to come to grips with the unexplainable. Governments will frantically search for answers, and the news media will race to cover the story of the century. But in these attempts to find the truth, the world will be blinded to the most obvious explanation, that which is written in the Scriptures. The Apostle Paul said in 2 Thessalonians chapter 2, they will believe the lie. Some official statement will be made. Aliens got them, laser beams zapped them, something that sounds reasonable and credible, and the majority of people will believe that explanation rather than believe the truth of Scripture. Chaos will be rampant in the months that follow, as fear and confusion engulf a planet trying to cope with the disappearance of an enormous segment of its population. And as anxiety builds, the birth pains of spiritual deception, wars, and natural disasters will accelerate, while the earth stands on the brink of a terrifying future. जय मसीह की जय मसीह की जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड खुदावंद यीशु मसीह के कादर और मीठे और प्यारे यीशु नाम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं पैम परमजीत को भी देख रहे हैं खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी का एक दिन और दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि ये ज़िंदगी के दिन दुनिया में लेकिन हमेशा की ज़िंदगी उसकी कलीसिया और उसके लोगों की है आमीन 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 टू दैट It's really an honor to be with you all again this evening और जैसे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीख रहे हैं पढ़ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स अब वक्त आ गया कि हम के सॉलिड खुराक लेना शुरू कर दें तो खुदा ने ये मुमकिन कर दिया है और मैं शुक्र करती हूँ खुदा का कि खुदा के खादिम आ रहे हैं और आपको कलाम सुना रहे हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर और बहुत सारे हमारे अजीज सोच रहे होंगे भाई ये क्या है ये तो बात अभी कभी हमने सुनी ना देखी थी ज़रूर आप कीप वॉचिंग ग्लोरी टीवी और आपको बताते चलेंगे कि जो हमारे पीछे तस्वीर
तस्वीर लगी है, ये वो एक कह लें कि सीन होगा जिसका आज हमने जिक्र करना है। सरफराज के साथ मिलकर जो है पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये कब और किस वक्त होगा और कौन अजीज़ होंगे जो इस तरह से खुदा का जो है बादलों पे इस्तकबाल यानी कि उनका वेलकम करने के लिए इस ज़मीन से उठाए जाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, हम दुआ करेंगे, खुदा से तसल्ली चाहेंगे, उसकी विजडम को मांगेंगे, उसके प्यार को मांगेंगे। और खुदावन जो तू रास्तबाज की खुदावन जो कलीसिया तैयार कर रहा है, रोबा शंदरा सीखला, जिनकी ताकत और कुव्वत जो है उकाबों की मानंद है, और ला ईगल्स की तरह वो खुदावन वो आगे बढ़ते हैं, खुदावन वो जोर पकड़ते हैं और खुदावन तुझ में बढ़ते जाते हैं। खुदावन हालेलुया, तू ऐसी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, तू ऐसे लोगों को लेने के लिए आ रहा है, उठाने के लिए लेके आ रहा है। लिको रबा शंदरा सीखा थैंक यू लॉर्ड। हम खुदावंद इस वक्त हर तरह की खुदावंद जो हिंड्रेंस है, हर तरह के शक को तेरे यीशु नाम से दफा और दूर करते हैं। और खुदावंद तो अपने लोगों के दिल और दिमाग को खोल ताकि वो रिसीव करें खुदावंद आज के इस पैगाम को, इस टीचिंग को, जो खुदावंद नबूवत है, जो खुदावंद नबियों ने की, खुदावंद तेरे कलाम से हमें मिलती है और जो आने वाले वक्त के लिए अपने लोगों को तैयार करता है। खुदावंद वो नबूवत, वो पेशन गोई, वो जो भविष्यवाणी खुदावंद तेरे अजीजों ने की है, तेरे नबियों ने की है, आज उसे पढ़े, सीखें और खुदावंद और होशियार हो जाए। और हर आफत, हर मुसीबत को हम इस वक्त कैंसिल करते हैं और हर शैतान के फैलाए हुए जाल को हम जो है जला देते हैं, काट देते हैं यीशु के नाम से। सो खुदा बाप हमारी मदद कर, हमें जोर बख्श खुदावंद, सचमुच उकाबों की मानद हमें खुदावंद तू उड़ा और लेके चल आगे, ताकि हम तेरे इस भेद को ले सकें और जान सकें, क्योंकि खुदावंद वो घड़ी बहुत नजदीक है जबकि तू हमें लेने के लिए आने वाला है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं बाप, तेरा शुक्र करते हैं प्यारे पाक रू, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे दिल खुदावंद खुशी से भरते हैं जब हम सोचते हैं कि तेरे साथ मिल जाएंगे, तो हमें लेने के लिए आएगा। तूने वो राह तैयार कर दिया, रास्ता बना दिया है। खुदावंद वो टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे किए जाएंगे खुदावंद, हालेलुया यीशु। वो क्रिकेट वेज जो है वो स्ट्रेटन किए जाएंगे, पाथ वो तेरे लिए खुदावंद, बिकॉज़ यू आर कमिंग बैक सो सून टू फेच योर ब्राइड, तो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। खुदावंद हम पे रहम कर, हम पे रहम कर और हमें तैयारी बख्श अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन आमीन। इट्स सो पावरफुल सरफराज, यू नो दिस इज रियली ऑसम, क्योंकि खुदा का रूह जब ओवरटेक करता है सरफराज, यू नो कोई शक नहीं, पर मुझे बिल्कुल जो बिलीवर्स हैं, जो खुदा के रूह से मामूर हैं, जो खुदा के कलाम को जानते हैं, सरफराज मैं उस सीन को देखना शुरू हो जाती हूँ। यू नो आई बिगिन टू गेट कोट अप इन दैट कह लें कि एटमॉस्फेयर में, कि वो उस वक्त वो कैसा नज़ारा होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपने जो तस्वीर देखी, जो पहले जो फिल्म चल रही थी, मैं चाहूँगी उसको थोड़ा सा चलाया जाए कि उसके ऊपर बोलकर आपको बताऊं कि आपने देखा, क्योंकि कई लोग नहीं समझ रहे होंगे क्या हुआ। सरफराज अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ा सा अपने अजीजों को बताऊं कि जिस बात पे आज हमने जिक्र करना है वो है रैप्चर, उसे कहते हैं, यानी कि कलीसिया का उठाए जाना। कोट अप इंग्लिश में एक वर्ड है और मेरे सामने लैटिन में उसको कहते हैं रैप्टू, मतलब रैप्चर वर्ड है। और सरफराज भी बताएंगे। सरफराज पंजाबी की कहांगे सी चुके जाना, चुके जाना असल च हम ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਡ ਕੇ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਔਰ खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी। खुदा यीशु मसीह अपनी कलीसिया ਨੂੰ इस जमीन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ के और चुक लेंगे। आमीन। बहुत प्यारा आपने समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे अपनी इस बाइबल स्टडी को लेके चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम है नबूवत का, यानी कि बाइबल प्रोफेसी, बाइबल की नबूवत। सो ये जो नबूवत आज आपके सामने है, ये बाइबल में हो चुकी है। और ये सबसे ऐसी बहुत सारी प्रोफेसीज हैं, लॉट्स ऑफ प्रोफेसीज, आई कुड प्रोबब्ली से मोर देन 20-21 जो प्रोफेसीज हैं। जो 10 है वो इमिनेंट है, बहुत जल्द हो सकती पूरी वो नबूतें, लेकिन 21 से 22 जो है ना प्रोफेसीज हैं वो फुलफिल होंगी, पूरी होंगी, तब यीशु जो है आएंगे। लेकिन जो सबसे पहली जो नबूवत है
वो है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को यानी कि कलीसिया को, चर्च को वापस लेने आ रहा है। कौन सी वाली चर्च को? जो ईमानदार है, जो खून से खरीदी गई है, जिसने अपने जामे धो लिए हैं, जो बिल्कुल जिस पे कोई दाग धब्बा या झुर्री नहीं है, सिर्फ हम गीतों में नहीं गाते, वो ऐसी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। हम अक्सर गीत गाया करते हैं। तो आज हम जब देखते हैं, ये हमारे सामने जब ये थोड़ा सा क्लिप रोल होगा तो ऑब्वियसली स्क्रिप्चर्स आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद वाला जो हिस्सा मैं उस पर बोलना चाहूंगी। जब लोग उठाए जा रहे हैं, जो आप देखेंगे कि किस तरह से वो उस वक्त किस तरह का वो माहौल होगा। तो अगर वो चलाएं उसे प्लीज़, तो मैं उसके ऊपर बात करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स है। स्क्रिप्चर्स के बाद आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से जो है लोग हैं इस दुनिया से गायब होना शुरू हो जाएंगे। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जो टेस्टमनी है, सॉरी कह लें कि प्रोफेसी है, नबूवत है, वो सफरा सबसे एक्साइटिंग एक वक्त होगा जब ये पूरी होगी, क्योंकि जब पहली जो नबूवत है इसे पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो कलाम हमें बताता है तस्लीकों की किताब में, अभी हम फर्स्ट थेसलोनियंस और उसका चैप्टर 4 में जो है 4 में अभी पढ़ेंगे, और ये देख सकते हैं हमारे सामने वो स्क्रिप्चर्स आ रहे हैं, आप इसे अपने वक्त में पढ़ सकते हैं। न्यू टेस्टमेंट की ये प्रोफेसी है, और जिसे जो है खुदावंद यीशु मसीह ने भी बताया कि किस तरह से उनका आना हो, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पे उठते हुए देखा है, उनको जलाली बदन में देखा। अजीजों, वक्त जो है रुकेगा नहीं, जैसे आप देख सकते हैं वक्त चलता जाएगा, और ऐसी बहुत सारी निशानियां जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें नजर आएगी, इसका मतलब मेरा आना बहुत नजदीक है। जब ऐसा एक वक्त होगा, दिन को हो सकता है, रात को, किसी वक्त भी हो सकता है, ये सिर्फ खुदा को पता है। तो क्या होगा? जब होगा तो शोर मचेगा। सरफराज ये देखा, शोर मचेगा, लोग हैरान हो जाएंगे। वो एवरीडे जैसे रोज के काम करते हैं वो करते होंगे, आप देख सकते हैं लोग हैरान हो रहे हैं, शोर मच रहा है, क्योंकि खुदावन जो है अपने लोगों को, कलीसिया को उठा के लेके जा रहा है। लेकिन ये इस वक्त इस उठाए जाने में लोग नहीं देख सकेंगे। कब्रें खुल जाएंगी, जहां मुर्दे जो यीशु पे ईमान रखते थे उनकी कब्रें खुल जाएंगी, वहां से वो उठ जाएंगे और आसमान पे खुदावंद के साथ वो मिल जाएंगे। बहुत शोर होगा उस वक्त। हो सकता है कोई पायलट है, वो जहाज चला रहा है, तो वो पायलट का आई कांट से, मतलब बहुत नुकसान होगा। गवर्नमेंट्स जो है इकट्ठी मिलकर बैठेंगी, उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगी। लोग इस तरह से बाजार में क्या करते, खरीद रहे होंगे, और आपने देखा एक जना चला गया, ये देखो एक जना गायब हो गया, एक रह गया, एक विश्वासी है, एक जो विश्वास नहीं करता। ये देखिए ये बच्चा गायब हो गया। ऐसे होगा, जहां कहीं भी आप होंगे, आप उस आसमान पे उठाए जाएंगे। देयर यू गो, यू कैन सी, क्योंकि देखने में पता चलता क्या हो रहा है, भी एक जना गायब हो रहा है। जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाता है उस वक्त वो उठाया जाएगा। बादलों पे जो है खुदावंद यीशु मसीह उनको लेने के लिए आएंगे। सो यू कुड बी डूइंग एनीथिंग। खुदा के कलाम के मुताबिक हमें बिजी रहना है, हमें खुदा का काम करते हुए रहना है। बहुत सर्च होगी, देखो ये हेलीकॉप्टर सर्च कर रहा है पूरी दुनिया में, इसकी जो है न्यूज कास्टर जो है इसकी न्यूज देंगे। और ऐसा भी होगा कि न्यूज कास्टर जो होगी शायद रो के इस खबर को सुनाए, और हो सकता है उनसे खबरें पढ़ी भी ना जाए। ऐसा माहौल उस वक्त होगा। हमारा मतलब डराने का नहीं, ये बड़ी खुशी की बात है, बाद में आपको बताएंगे। लेकिन पैम, मैं सॉरी, बड़ी वाकई ईमानदारों के लिए तो खुशी की बात होगी। लेकिन दुनिया में ये जितनी भी ट्रैफिक होगी वो रोड जो बंद हो जाएंगी, चूंकि बीच में से जो खुदा के ईमानदार लोग हैं चलते गाड़ी में से गायब हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी हमने जैसे दिखाया, बिल्कुल। और इसी तरह मीडिया जो बहुत एक्टिव हो जाएगा और बहुत तरह तरह की लोगों को बातें बताएगा, कहेंगे यूएफओ आए थे, एलियंस आए थे, उठा कर लेके चले गए। तो ये देख सकते हैं कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो स्पेशली एंड टाइम प्रोफेसी को जो है बड़े एक उनका सब्जेक्ट है, बड़े क्लोजली उसे देखते हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के जो जब पैदा होना तो उन्होंने, तो वाइज मैन थे, उन्हें जो थी वो ऐसा नहीं कि ओवरनाइट वाइज मैन को ये खबर मिल गई थी, उन्होंने बहुत उसकी जो थी रिसर्च की थी, उनको पता था कौन सी घड़ी क्या होगा। ओके, ये जो है इसको अभी हम रहने देंगे, क्योंकि इसका लिंक है बाद में जिस पे हमने बात कर ली। इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोफेसीज हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रोफेसी दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, एंड इट कुड बी फुलफिल्ड एनी टाइम, इवन इफ यू आर सिटिंग हियर। अभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी रैप्चर हो सकता है। यस, मैं बिल्कुल, हमारा ईमान है अजीज बहनों भाइयों, और जो खुदा को जानते हैं, बरगुज़ीदा हैं, वफादार हैं, खुदा के खून खरीदे हैं, तौबा की हुई है, बॉर्न अगेन है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, पवित्र आत्मा का मसा है, वो ये बातें जानते हैं कि वो कब ये जो समय है, जो वक्त है आ जाए, और खुदा के लोग, जो खुदा की कलीसिया है, खुदा की जो दुल्हन है, कलीसिया में से दुल्हन है, वो उठा ली जाएगी। परमजीत, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये जो वक्त है, ये आमदे सानी हम कहते हैं, दूसरी दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह का आना कहते हैं, लेकिन दूसरी आमदे सानी जो लोग दे सकेंगे
उससे पहले ये काम रैप्चर का होगा। जो पहला जो प्रोफेसी जो है, इसकी पूरी पेशन गोई है, खुदावंद यीशु मसीह गुप्त में आप अपनी कलीसिया को यहाँ से ज़मीन से जो मुश्किलें आने वाली हैं, प्रॉब्लम है, ये सारी लड़ाई झगड़ा और बहुत बड़ी जंगें होने वाली हैं, अपनी दुल्हन को, खास लफ्ज़ है दुल्हन को, जो बर्रा है, जो दुल्हा है, वो उठा के अपनी कलीसिया को ले जाएगा। और वो खुदावंद यीशु मसीह दुल्हा है। और आप लोग जो तैयार हैं, खुदावंद के पवित्र आत्मा से भरे, उनके माथे पर मोहर एक यहाँ लगी हुई है, उनके माथे पर, उनके जिस्म पर, उनके चेहरे पर, उनके माथे पर पवित्र आत्मा की मोहर है। वो रैप्चर हो जाएगा, वो उठा लिए जाएंगे और दुनिया नहीं इनको देख सकेगी कि ये कैसे हुआ। लेकिन वो घड़ी खुदावंद यीशु मसीह की वो वक्त जो है आज भी हो सकता है। हम निकले, मैं और परमजीत बैठे हम, खुदावंद के जो मानने वाले हैं, अभी खुदावंद हमें उठा के ले जाए, ऐसे यानी नागहान कहते हैं कि वो उस समय का बिल्कुल पता नहीं जब लोग उठा लिए जाएंगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जी, बड़ी एक्साइटिंग स्क्रिप्चर्स हमारे सामने है। सबसे पहले अगर सफराज के पास उर्दू का बाइबल है तो हम देख लेते हैं पहला थेसलोनियन, उसका जो चैप्टर 4 है, चौथा चैप्टर, ये न्यू टेस्टमेंट में आपको मिलेगा। तो आप नਵੇਂ नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਸਲਨੀਕੀਓ ਲੈਟਸ ਰੀਡ दैट किताब चौथी है, ਉਹਦਾ ਬਾਬ चौथा है, पहली किताब ਉਹਦਾ चौथा बाब और ਉਹਦੀ 15 आयत। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों में उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। आमीन। ये तो पहली बात हुई कि जब सफराज हमें पता चल रहा है कि हम खुदा के साथ रहेंगे, लेकिन अब बहुत सारा लोग सवाल करते हैं भी ये होगा कैसे। तो इसकी मदद हमें मिलेगी पहला कुरिन्थियंस उसका चैप्टर 15 और उसकी आयात है 51 to 54। सो प्लीज फर्स्ट कुरिन्थियंस आप देख लें, गॉस्पेल्स के बाद जो न्यू टेस्टमेंट की ये प्रोफेसी है उसी को ही आज हम देख रहे हैं। अगर बहन भाई अपनी मतलब बाइबल जिनके पास है जरूर खोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी जो है 51 to 54 जो है, ये जो हवाले पढ़ना आप अपने टाइम में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें वो ऐसा बदन मिलेगा कि जो तब्दील हो जाएगा और हम जो आसमान पे उठाए जाएंगे। इफ आई जस्ट रीड दैट, इट सेज बिहोल्ड आई टेल यू अ मिस्ट्री, वी शैल नॉट ऑल स्लीप बट वी शैल बी चेंज्ड इन अ मोमेंट, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, एट द लास्ट ट्रम्पेट, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption and this mortal must put on immorality. So when this corruptible has put on incorruption and this mortal has put on immorality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So first, can I just say that something just before that, क्योंकि ये तब होगा जैसे हम देख सकते हैं कि लोग पूछते हैं ना अक्सर हमसे, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, हम ये बाइबल स्टडी दिस वाज अबाउट 15-16 years ago मैं और सफराज किया करते थे, है ना सफराज। और खुदा जो है अब इतने सालों के बाद जो है अब हम इतने मतलब बड़ी कलीसिया के साथ, ग्लोबल गिरजाघर के साथ इस टीचिंग को शेयर कर रहे हैं, और बहुत अच्छा और फख्र भी हो रहा है इस बात पे कि शुक्र है खुदा ने जो सारी अपनी बातों को समझाया और हमने इसे दिल में रखा और स्टडी ली है, आज हमारे काम आ रही है। कैसे होगा, जैसे लूत के दिनों में हुआ था और जैसे डैनियल के दिनों में, डैनियल कह रही हूँ नोवा के दिनों में, क्योंकि डैनियल की किताब में इसका वाक़या लिखा हुआ है और खुदा यीशु मसीह ने भी इसको कहा। जब लूत के दिनों में सफराज बताएंगे कि कैसा कहर था, कैसे लोग थे, क्या रवैया था, कैसे उठते बैठते थे, क्या करते थे, फिर हम देखेंगे कि क्यों खुदा ने ये बात कही है कि उस मुल्क का, उस जगह का, उस दुनिया का उस वक्त कैसा माहौल था। और उसके साथ साथ जब हम देखेंगे कि फ्रॉम लॉट जो उसके दौरान हुआ और फिर जो दोबारा दूसरी जगह नोआ की कश्ती और कितने लोग जो बचे थे, आप मतलब पूरी दुनिया में से कितने लोग बचे। और लूत की जो कहानी है, जहाँ सदूम और अमूरा की जो कहानी आपने पढ़ी है, तो उसमें
कितने शख्स बचे वो क्योंकि उस सदोम वक्त उस वो जगह का माहौल क्या था, वहाँ जो थे एक जैसे कह लें औरत औरत से, मर्द मर्द से, और ये शादियां भी कर सकते थे। और जैसे आजकल देखते हैं कि पूरे मतलब पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि अगर ये शादी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और इसके साथ साथ जो है कि जो माहौल इतना बदल गया है, और जिस तरह के टीवी पे देख लें आप प्रोग्राम देख सकते हैं, कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि जवान जवान लड़कियां किस तरह से जो कुछ आज कल कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, और कितना ड्रग का जो अब्यूज़ हो रहा है, और पोर्नोग्राफी कितनी ओपनली मतलब चैनल्स पे अवेलेबल है, लोग एडिक्शन में आ चुके हैं। इस तरह का माहौल जब बन गया तो लोग खुदा से दूर हो गए। इसीलिए लूत के ज़माने में भी जब वो जो अब्राहम का नेफ्यू था, उस वक्त भी सोडम और गमोरा एक वो जगह है जो डेड सी के पास है। आज भी आप जाएं तो देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने उसे आसमान से जो थी आग गिराई, और वो उसको पूरे जो था जगह थी उसको जला दिया, और उसमें से सिर्फ लूत और उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां सिर्फ जो बची थी, और कोई नहीं बचा था। 4 बंदे सिर्फ बचे थे उसमें। और जो उसकी बीवी थी, जब उसने मुड़कर देखा वो अपने उस जगह को, सदोम और गमोरा जहां वो रहते थे, तो वो जो थे पिलर ऑफ सॉल्ट बन गई, नमक का जो सतून बन गई, और वो खत्म कर दिया खुदावन ने। उस वक्त भी ऐसा हुआ था, थोड़े से लोग बचे थे। अब आगे आकर हम देखें तो जो नोआ ने जब कश्ती बनाई सरफराज, तो उसने क्या किया, अपने लोगों को, अपनी फैमिली को तैयार किया, और सिर्फ ये बातें फैमिली के साथ शेयर की कि खुदा ने मुझे कहा है कि वो दुनिया को ख़त्म करने वाला है, और तू अपने ख़ानदान को लेकर इस तरह की कश्ती बना और उस पर ले चल, और जानवरों को ले चल, और जो वन ऑफ ईच जो थे 2-2 जोड़े करके तू ले जा, और क्योंकि मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूं। तो नोआ के दिनों में भी ऐसा हुआ था कि सिर्फ 8 जो बंदे थे, जो नोआ का परिवार था, खानदान था, सिर्फ वो ही बचा, बाकी सब जो था पूरी दुनिया पानी के नीचे आ गई थी और हलाक हो गई थी। ये जो 2 वाकया हम देखते हैं तो ये हमें तकरीबन जो है रैप्चर की, यानी कि उठाए जाने की, खुदा के पास चले जाने की जो है एक तस्वीर मिलती है। आजकल के हम माहौल को देखें, पूरी दुनिया में देखें कितनी हलचल है, मतलब कोई प्यार नहीं, एक दूसरे के साथ बहन भाइयों का प्यार नहीं है। और एक अगर फैमिली है तो उसके सारे मेंबर रोटी रोजी के सिलसिले में पूरी दुनिया में स्कैटर हुए हैं। और मतलब ऐसा है कि अपने वो जो ईदें मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, उस जगह पे भी एक दिन इकट्ठी वो फैमिली नहीं हो सकती। तो क्या हो गया कि जब खुदा ने कहा कि जब यू नो दिस अर्थ इज बीन कर्स्ड, तो खुदा ने इसको जब लानत भेजी, तो खुदा ने कहा कि तू सारी जिंदगी जो है रोटी रोजी के लिए ऐसी जगह पे जाएगा, क्या सारी जिंदगी ब्लड और स्वेट की, तो जो मजदूरी करेगा, पसीने की रोटी खाएगा। तो इसलिए रोटी की खातिर हम देख सकते हैं कि लोग कहाँ कहाँ कैसे स्कैटर हैं। सो ओके, कमिंग बैक टू द पिक्चर, सो आई होप दैट सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन कि किस तरह का माहौल था जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात हमें मिली। अपोस्टल पॉल कहता भी बताएगा वो क्या होगा उस वक्त, तो कौन लोग हैं जो उठाए जाएंगे, और किस तरह हम आज एक दूसरे को तसल्ली दे सकते हैं। फर्स्ट करंथियन यानी पहला करंथियों, और उसका चैप्टर है 15 जी, उसकी वर्स है 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा, अब मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने, और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा हो जाएगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। आमीन। और दूसरी आयत, आए मौत तेरी फतह कहाँ गई। ये हम यानी यहाँ तक रहेंगे 54 तक। पहला करंथियों आप जरूर पढ़ लें, ताकि ये जो आयतें पढ़ी जा रही हैं, ये जो आपको जो हम किताब मुकद्दस से दे रहे हैं, अंजील मुकद्दस से आपको वर्सेस दी जा रही हैं, ये इस रैप्चर के साथ इनका ताल्लुक है। रैप्चर जो रैप्चर कहते हैं यानी उठा के लेके जाना। खुदावंद यसु मसीह सानू अपनी कलीसिया नू, दुल्हन नू, अपनी वहुटी नू हाँ इत्थों उड़ा के इस जमीन तो लैके जाणगे जेड़े ओदे खून खरीदे और ओदे की कहंदे ने कि जेड़े बरगुज़ीदा लोग होणगे, जेड़े वफादार लोग होणगे,
ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਕੇ चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सफाज उठाए जाएंगे, जो खास तौर पे ये वो सिलेक्टेड जो लोग होंगे, जो चुने हुए लोग होंगे, जो है कि अब इस वक्त जिन्होंने खुदावंद को कबूल कर लिया है और अपनी ज़िंदगी खुदा के हुक्मों के मुताबिक, खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो इस पहली आमद में खुदावंद के साथ शरीक होंगे और शामिल होंगे। और इस तरह से हम देख सकते हैं क्योंकि हम अदालत इसलिए हम कहते हैं हमारे ऊपर अदालत नहीं है, दंड नहीं है, सजा नहीं है। सो इवन नोआ वाज आल्सो टेकन आउट विद हिज फैमिली, जजमेंट नहीं उसकी हुई, उसकी अदालत नहीं हुई, उसे निकाला गया। इसी तरह लूत और उसके खानदान को जब बचाया गया तो उस बड़ी अदालत से बचाया गया, क्योंकि हम सारे वी बिलीव इन अ डे ऑफ जजमेंट, एक दिन हमारी जो है अदालत होगी खुदा के सामने। तो जो अब रैप्चर का मतलब है कि एस्केप होना, यानी कि उस अदालत से पहले जो है खुदावंद हमें जो उठा लेगा, तो हमारी अदालत नहीं होगी। क्योंकि जो माहौल इस दुनिया को उस वक्त होगा, जिस तरह की लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, एंटी क्राइस्ट होगा, जो इज़ीकियल 38-39 वाला वॉर लगेगा, साम 83 वाला जो हमने दिखाया वॉर लगेगा, इससे पहले जो है ये सबसे अब जो नेक्स्ट जो नबूवत है ये पूरी होनी है कि जो कलीसिया उठाई जाए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी गल कीती परमजीत कि सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਬੂਵਤਾਂ ਭਵਿष्यवाणी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਵਿष्यवाणी ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫਿਰ ਆਮਦ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਆਮਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੈਪਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ देख सकेगी और खुदावंद यीशु मसीह दे नाल उन्हां दा मिलाप होएगा। आमद सानी यानी दूसरी जड़ी आमद है, जड़ी जमीन दे उत्ते खुदावंद यीशु मसीह ने जैतून दे पहाड़ दे उत्ते पैर रखने ने, वो आमद सानी यानी दूसरी आमद कहलाती है। वो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, लेकिन अभी आज हम उस पे गौर करते हैं। बहुत अच्छा आमद को बताया, सेकंड कमिंग असल ज्यादा लोग इसको समझते हैं कि पहली आमद ते दूसरी आमद, जी लेकिन ये दूसरी आमद ये विचकार ये तीसरी आमद है जो दुनिया नहीं देखेगी, सिर्फ जो ईमानदार है, बिलीवर्स है, वही देखेंगे। ठीक है। और जैसे हमने नोआ और लूत का जिक्र किया सफर, साथ जो शद्रक, मेशक और अबेदनीगो जो थे, जो तीन थे जो कैप्टिविटी में थे, बेबीलोन में लेके गए थे, इजराइल से जो उठाए गए थे, यहूदी थे, जब उनको जो था आग में डाला गया, तो उसमें भी किसने उनको, किंग जो नेबुकदनेस्सर था, नबूकदनेस्सर जो था, नेबुकदनेस्सर था, उसने भी जो उस घड़ी की जो उनकी कह लें कि वो जो ट्रायल की घड़ी थी, क्योंकि ये एक ट्रायल होगा सफराज, हमारी एक ऐसी कह लें कि इम्तिहान होएगा, एक ऐसी हमारी वो घड़ी होगी जिससे हमें सिर्फ यीशु ही बचा सकेंगे, क्योंकि एंड टाइम पे खुदा जो है अपने लोगों को उठा के ले जाएंगे। इसी तरह से शद्रक, मिशक और अबेदनीगो को भी उस फायर से, उस आग में से यीशु ने ही आके छुड़ाया, है ना। जो चौथा शख्स था, उन्होंने कहा जब राजा ने उनको इतनी आग में डाल दिया और आग इतनी तेज कर दी, तो उनके लिए तो उस वक्त रैप्चर ही था एक्चुअली, है ना। तो जो है ना, ये बड़ी बहुत अच्छी मिसाल है कि यानी वो तो मौत की वादी थी, मौत की यानी आग में डाल देना, यानी मौत में धकेल देना, उसमें भी खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को, वो जो तीनों थे, क्योंकि वो खुदा पर मुकम्मल ईमान रखते थे और खुदा के बरगज़ीदा लोग थे। हालेलुया। इसीलिए जो हम कलीसिया हैं, हम एक्साइटेड हमें होना चाहिए, हमें खुशी मनानी चाहिए जब हम इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। एक दो तस्वीरें देखें कि कैसे लोग उठाए जा रहे हैं। मेरे पीछे देखिए आप, जो है यीशु जो नूर है, रोशनी है, वो आएगा, ये वाले बादलों पे नहीं, वो लेकिन वो रूहानी माने उसका समझने की जरूरत है। तो उसमें जो खुदावन जब हमें लेने के लिए आएंगे, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से लोग जो हैं यीशु को, जो बिलीवर्स हैं दुनिया में से देखेंगे, किसी भी कोने में होंगे, इस तरह उनका आना जब होगा तो हम सारे उड़कर उनके पास चले जाएंगे। हालेलुया। और ये लोग वो जाएंगे क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए उस अदालत में से, उस कहते हैं ना औखी कड़ी विचों कड्डण वास्ते लेके लैन वास्ते आएगा। परम जी एक मैं क्लियर कर दूं बात, क्योंकि जो रैप्चर है, वो जो दुल्हन है, उस पर वो अदालत नहीं है जी, क्योंकि वो बॉर्न अगेन है, अदालत उनकी अदालत हो चुकी, क्योंकि उन्होंने इस सलीब को अपनी, खुदावंद ने कहा अपनी सलीब उठा के चल फिर, तो अपनी सलीब उठा के दुनिया में रह के खुदावंद पर, यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान रखा है, तो
तो ये इस वजह से इनकी अदालत यहाँ हो चुकी है, उनकी अदालत नहीं है, और वो इतने खुदा से इतना प्यार करते हैं कि अपनी जान देने तक, और बहुत सारे लोग शहीद भी हो चुके हैं पहले जो है, उन्होंने अपनी जिंदगी जान यीशु मसीह की खातर दे दी है, वो सब पहले उठेंगे। लिखा है कि पहले जो शहीद हुए हैं, हाँ जी, वो जिस्म उठेंगे, लेकिन वो दूसरे जिस्म यानी उड़ने वाले यानी नूरानी जिस्म होंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, दैट्स रियली एक्साइटिंग। तो हमें जो है डरना नहीं है, हमने जो है उसके लिए तैयार होना है, इसीलिए दिन रात खुदा का कलाम सुनाया जा रहा है। आप यीशु को एक्सेप्ट करें, कबूल करें, ताकि आपके गुनाह माफ़ हो जाएं और आप जो है खुदावंद के साथ जा सकें, क्योंकि खुदा ने कहा ये सारी निशानियां आपको मिलेंगी जो हुकूमतों के खिलाफ होंगी, ठीक है, जिसका आपने बाइबल स्टडी भी ली है और उसमें आपने समझा और जाना है कि ये एंड टाइम में हम रह रहे हैं, ये आखिरी वक्त है, जिसे थर्ड आवर भी कहते हैं, आखिरी लम्हे हैं। थोड़े से जैसे डैनियल की किताब में से हमने देखा था, वो जो स्टैचू था उसके जो आखिरी हिस्सा सफराज वो रह गया है, पाँव और उंगलियां हैं, और वो इतना शॉर्ट टाइम रह गया है कि खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें जो है हमें अपने कामों में, जैसे नोआ के वक्त में बिजी रहते थे और अपने कामों में लगे रहते, शादियां ब्याह में दे रहे थे, अपने दुखों विच पैसे, लेकिन अचानक जो था वो घड़ी उन पे आ पहुंची। इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने आना है और उन लोगों को छुड़ा के लेके जाना है जो खुदा का इस वक्त इकरार कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए शहीद हो रहे हैं, उसके लिए जी रहे हैं। आमीन। परम मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया जो मुसीबतों का ये शुरू है, जब मैथ्यू 24 पढ़ते हैं, ये अजीज भैनों भाइयों, दुनिया च जिन्नियां मुसीबतां आ रही ने, हड़ आ रहे ने, जलजले अर्थक्वेक आ रहे ने, लड़ाई झगड़ा जंगा हो रही, ये अजे शुरू है। अजे जेडे कई लोग अजे खुदा दे लोग ने अजे उन्होंने बहुत करीब तो उन मुसीबतां नूं नहीं अजे देखा, इन्नियां मुसीबतां आनियां। लेकिन मैं कहना परमजीत मतलब स्कॉलर जिन्हें कहते ने या लिखे खबरां च कहते ने कि दुनिया ने जे एटम बम दुनिया दे विच नहीं ने, बल्कि एटम बम दे उत्ते दुनिया बैठी हुई है। कदी भी जे काम खराब हो गया और फट गया तो दुनिया साड़ दी जाएगी। इन्ने पावरफुल बम ने, एटम बम ने, कि असल च दुनिया जड़ी ओदे उत्ते हुण खलोती हुई है, रखिया होया, कदी भी कुछ हो सकता अजीज भैनों। लेकिन भैन खुशी की खबर है कि एक रस्ता है, ना तलवार है, असी बादशाह मसीहा दे नाई मसीह सुन लैन, जेड़े ईमानदार ने मेरी गल नूं याद रखन। और खुदा दा कलाम कहंदा साडे को होर कोई चारा नहीं, ना असी सानू कहा भी तलवार तुसी चलानी है, ना सानू लड़न लई कहा है, सानू माफ करन लई कहा। एक ही रस्ता है इस दुनिया चो, इन मुसीबतां चो निकल के बाहर जान दा, सिर्फ वो है रैप्चर, यानी उड़ के यीशु मसीह दे कोल चले जाए। बिल्कुल, और ये उनके लिए हर जो कलीसिया जो आती है, जैसे कह लें कि विल लिव फॉर 40 years 50 years, लेकिन वो ईगरली जो विश्वासी है इंतजार करता है कि उसका दुल्हा किसी वक्त भी आ सकता है, और खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक उसका आना एक चोर की मानद होगा। बिल्कुल, तो लिखा है कि एज ए थीफ इन द नाइट, इस तरह से वो आएंगे। अगर हम देखें खुदा के मुकद्दस कलाम में मैथ्यू 24:8, जैसे सरफराज ने कहा कि हमारे लिए, क्योंकि ना तो ये भी देखेंगे कि किस तरह खुदा जानता है कि वो वक्त कब होगा, हम ना इस पे कोई डेट सेट कर सकते हैं, ना कोई ईयर सेट कर सकते हैं कि फलां तारीख को, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट्स ने जो है ऐसे दिन भी दिए। किसी ने कहा 1996 में दुनिया का एंड हो जाना है, किसी ने कहा 2000 मिलेनियम शुरू होने से पहले जो है सरफराज इसको दुनिया ने एंड हो जाना है। और खास तौर पे मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि नोट्रोडेमस की जो प्रोफेसीज हैं, उसने सिर्फ बाइबल से चोरी किया हुआ सारा काम है, उसने लिखा है। नोट्रोडेमस को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं बाइबल की टीचिंग को, जो सेकेंडरी समझते हैं, लेकिन जो उसने कहा है उससे कहीं ज्यादा बेहतर क्लैरिटी के साथ आपको जो है नबूवतें हैं, जो प्रोफेसीज मिलेंगी। सो पेरिस में आप जब जाते हैं तो वहां कहते हैं जी नोट्रोडेमस का यहाँ आपने जाना है देखने, पता नहीं क्या म्यूजियम है कि क्या, अंधेरा सा है। जो भी उसने लिखा है वो मतलब वो जो लिखा है वो इतना स्पूकी और हॉरिबल हॉन्टेड सी उसकी जो स्टोरीज है, लेकिन लोग कहते हैं कि जी उसने फलानी डेट को प्रेडिक्शन दे दी कि दुनिया का एंड हो जाएगा। न्यूज़पेपर्स बड़े बड़े जो फ्रंट पेज मतलब उसको प्रिंट करते हैं कि ये देखिए नोट्रोडेमस की प्रोफेसीज जो है फुलफिल हो सकती है। लेकिन ये सारी प्रोफेसीज जो हैं एंशिएंट हिब्रू प्रोफेसीज हैं, ये कोई मतलब ये मुकद्दस कलाम में जो बाइबल में हमें मिलती हैं, फिर लोगों ने आके इसको बुक्स बना के जो इसको बेच के अपना धंधा बनाया। लेकिन हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मत्ती रसूल की अंजील उसके 24 बाब में सरफराज क्या कहते हैं, वर्स 8 में, वर्स 8 में पढ़ते हैं मत्ती दी अंजील ओदा 24 बाब ते ओदी कितनी भी आयत पे हम दस सकते हैं? वर्स 8 तो पढ़ने 8 तो पढ़ने
लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। पहले मुसीबत दसी हैं पैम जी, चूंकि 4 तो पढ़ी है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, लोका ने उन्होंने को पूछा कि की आने वाले समझ की होएगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। कोई दुनिया दा बंदा की बन के, स्कॉलर बन के, कोई नबी बन के, कोई बुजुर्ग बन के, या कोई किसी टाइप दा स्कॉलर बन के तुहानू गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे। किसके नाम से आएंगे? यीशु के नाम से कहेंगे मैं मसीह हूं, और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा। 13 तक पढ़ दे, 13 तक पढ़ दूं जी। अच्छा, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। ये यीशु मसीह की बातें हैं, उनके मुंह से निकली हुई बात। 9वीं आयत, उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए, यानी तंग करने ली, मुश्किलां छुपाने ली, देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम से, यानी यीशु के नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। सब कौमें तुमसे अदावत यानी नफरत रखेंगी, और अदावत यानी दुश्मनी भी रखेंगी, और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाह की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आमीन। जीसस जब ये बात कर रहे हैं तो वो मंदिर से अभी निकल कर गए हैं, अपने शागिर्दों को साथ लेके जाते हैं। तो शागिर्द कहते हैं, खुदावंद है उस्ताद, तो देख कितना प्यारा मंदिर बना, क्या खूबसूरत इमारतें बनी है। तो लॉर्ड जीसस उनसे प्राइवेटली में, उनका मतलब लिखा है कि वो एक साइड पे लेके जाते हैं, माउंट ऑफ ऑलिव्स पे हैं, जो अपने डिसाइपल्स के साथ हैं, जैतून के पहाड़ पे। उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या, मतलब ये कहते हैं कि उस्ताद हमें बता, ये बातें सब कब कहूंगी। तो लॉर्ड जीसस कहते हैं, take heed that no one deceives you, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and will deceive many. And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines, pestilence, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. ये इसको सफर ये कहते हैं, जैसे पैंग्स भी कहते हैं, दर्दें, जैसे एक औरत बच्चा जनने के वक्त उसको दर्दें लग जाती हैं, तो इस तरह से इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट किया जाता है कि ये सिर्फ वो दर्द लगना भी शुरू ही हुआ है। Then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you may be hated by all nations for my name's sake. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many, and because lawlessness will abound, and love of many will grow cold. Oh my God. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. आखिरी जो आयत है, इस पे गौर करने की जरूरत है कि लिखा है कि इस अंजील की मुनादी हर लैंग्वेज में, हर कौम, हर कबीले को सुनाई जाएगी। यानी कि गुड न्यूज ऑफ दिस बाइबल जो है हर एक को सुनाया जाएगा। क्या हम कई बार हैरान नहीं होते कि ग्लोरी टीवी इतने आखिर में जाके जो ग्लोरी टीवी मतलब लगा, हालांकि इतने चैनल, इतने फजूल चैनल लगे हुए हैं, इतना मतलब पैसा जाया किया जा रहा है दुनिया का, लेकिन जो असल की बातें हैं वो उसके लिए अब जो है खुदा ने इस रास्ते को खोला है। तो लिखा है कि जो आखिर तक सारी दुनिया में खुदा के नाम की मुनादी होगी, और फिर जो खात्मा होगा, यानी कि फिर जो है ये दुनिया का अंत होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसके पे वाकई गौर करने वाली बात है, है ना। इट्स रियली वंडरफुल, यू नो हाउ द लॉर्ड इज मेकिंग इट वेरी क्लियर। आगे हम देख सकते हैं मार्क 13:8,
वो भी मतलब इसी तरह से है, सेम है ना भी देखें तो कोई बात, उसमें भी लिखा है कि कौम जो कौम पे चढ़ाई करेगी और जो किंगडम अगेंस्ट किंगडम होगी और भूचाल आएंगे, जो हमने सब ये पढ़ा है सारा, उसमें मार्क 13:8 में भी आप पढ़ सकते हैं। सरफराज, अभी हम जो डेली जो न्यूज़ में जो देख रहे हैं, क्या हमें किस तरफ ये इशारा बातें करती हैं, ये जो कुछ हम जो एवरीडे जो, ये तो आसमान के न्यूज़पेपर की खबरें हम पढ़ रहे हैं, सही बात है पर ये एक ऐसा, ये तो हेवनली मीडिया है जिसको हम देख रहे हैं। कोई शक नहीं कि ये तो पहले से लिख दिया हाँ जी, हाँ जो जी। न्यूज़पेपर तो वो बातें करी जो बाइबल मुकद्दस में लिख दी गई हैं कि कल क्या होना है, एक जंग आई है, एक अर्थक्वेक आया और बहुत सारे लोग मर गए, एक बम ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे लोग मर गए हैं और मसीह को मानने वाले हैं उनके ऊपर ये अत्याचार हुआ है, वो मर गए हैं यानी शहीद हुए हैं। और इस तरीके से बहुत सारी ये खबरें जो आ रही हैं अजीज बहनों भाइयों, ये सारी खबरें पहले से बाइबल मुकद्दस में पहले से लिख दी हैं। ये एक ऐसा खबरनामा है जो इंसान के शुरू और इंसान के खात्मे, यानी यहाँ से दुनिया में से, खात्मा तो नहीं, इंसान तो इंसानों को, वही जो रैप्चर है वो कलीसिया को उठा लिया जाएगा। बहुत से लोग बाद में बचेंगे, बाद में भी तौबा होगी और बाद में भी लोग को खुदावंद बचाएगा, क्योंकि खुदावंद की बादशाही दुनिया में आने वाली है और वो इन मुसीबतों के बाद आएगी। इन मुसीबतों से ये जो है एंटी क्राइस्ट जो है, जो खुदा के खिलाफ दुनिया जो मंसूबे बांध रही है, ज़बूर 2 को हम जब पढ़ते हैं तो ये जो वो अपना काम करते जा रहे हैं, लेकिन खुदा के लोग इसमें बहुत सारे पिसेंगे, लेकिन जो दुल्हन है वो नहीं पिसेगी। वो दुल्हन खुदावंद यीशु मसीह उसको उठाकर आसमान में ले जाएंगे और अपने पास रखेंगे, जो दुल्हन के लिए जगह तैयार की है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही है। और फिर ये भी है कि जब खुदावंद से पूछा गया तो खुदावंद ने कहा कि ये घड़ी बाप जानता है, खुदा को पता है। तो इसको हम देख भी सकते हैं, इसके आई एम जस्ट एक्चुअली लुकिंग एट 25 मैथ्यू 25 उसकी 13 आयत में लिखा है। मत्ती 25 और हाँ जी उसकी 13 आयत में लिखा 13 आयत में। हाँ जी, बहुत खूबसूरत। और ये सफर इसमें ये भी पढ़ने से पहले हम ये भी देख सकते हैं, इसमें जो कोई अगर पढ़ रहा है तो अपने ओन टाइम में ये भी पढ़ सकता है। इसमें 10 कुंवारियों का जिक्र है, द स्टोरी ऑफ द पैराबल ऑफ द 10 वर्जिन्स, बिल्कुल है ना। तो इसमें इस कहानी थोड़ा सा इसको भी समझा दें। उनसे मिलाते हैं, जैसे आपने पहले कहा कि लूत वाली कहानी, नोआ की कहानी, सदरक मिसक और अब्दुन्नजू की कहानी, उसमें ये सारी बातें हैं कि खुदा अपने लोगों को किस तरीके से उस मुसीबत से जो आने वाली होती है उसमें से पहले से निकाल लेता है। उनको आगाही होती है, उनको आगाही होती है। बल्कि खुदावंद नोआ जो है वो एक जो कश्ती है वो एक रैप्चर है। कश्ती को जो बोट थी नोआ की, वो रैप्चर के नाम को देती है। ठीक है ना, कि किस तरीके से वो रैप्चर हुआ और वो बच गए और नोआ के खुदा के खादिम और नबी नोआ की पूरी फैमिली को बचा लिया गया। उधर सदरक मिसक अब्दुन्नजू खुदा को मानते थे और खुदा यीशु मसीह ने खुद आके उनको बचाया, खुद आके बचाया फरिश्ते। और जो आप कई दफा खुदा यीशु मसीह खुद अपना कदम रखते हैं ताकि बचाने के लिए। अजीज बहनों भाइयों, आज जो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो आने वाला समय है, जो अब जो पेशन गोई हो रही है और आने वाले समय, खुदा यीशु मसीह का खुद जाती तौर पर अपने कदम जो है वो पहाड़ जैतून के पहाड़ पर कदम रखेंगे ताकि लोगों को बचाया जाए और खुद जो शैतान का जो सारा मंसूबा है उस पर फतह पाई जाए। और ये मैं देखना चाहता हूं कि 17 बाब जो मुकाशफा की रेवलेशन है, 17 बाब उसकी 14 आयत में वो लिखा है, वो बर्रा से लड़ेंगे। बर्रा कौन? यीशु मसीह। और बर्रा इन पर गालिब आएगा। ये जो आने वाला समय है, जंग की बात हो रही है, ये रैप्चर की बात, पहले रैप्चर के लिए ये है, क्योंकि वो खुदावंद का खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगुज़ीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। इसका मतलब है कि बर्रा की फतह होगी। ठीक है ना। इस तरह से जैसे 10 वो कुंवारियों का जिक्र है कि किस तरह वो आई और 5 के पास तेल था और 5 के पास नहीं था, 5 जिनके पास तेल था यानी कि तैयार थी वो चली गई, उठाई गई, और 5 जो थी वो रह गई। इसलिए इसमें 25 मैथ्यू चैप्टर 25 उसकी 13 आयत में लिखा है, वॉच देयरफॉर फॉर यू नो नाइदर द डे नोर द आवर इन व्हिच द सन ऑफ मैन इज कमिंग। क्या है ना कि तुम
होशियार रहो, होशियार रहो, बिल्कुल लिखा, बस जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। लेकिन छठी आयत बड़ी खूबसूरत परमजीत, आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया है। ये फिर वो अपनी पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं ना, ये पढ़ सकते हैं, आपको सबने सुनी हुई है। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, मकसद ये, आपने जब से मसीही लोग पैदा हुए हैं, जब तो वो सुनकर समझना शुरू हुए हैं, जब बालिग हो जाते हैं, चर्चेस के अंदर जाते हैं और ये सुनते हैं, और बहुत सारे लोग इस वक्त मसीहों के अलावा जो बहन भाई सुन रहे हैं, ये जो वाकया होने वाला है, रैप्चर, ये नबूवत है कि खुदावंद के लोग जो हैं वो उठा लिए जाएंगे। फिर चाहे यहाँ एटम बम चले और मतलब कि फ्लड आ रहे होंगे, उस वक्त जो एंटी क्राइस्ट का जो सिस्टम है वो भी टूट फूट जाएगा, जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सब कुछ खतरा, लेकिन किसकी फतह होगी? बर्रे की फतह होगी, चूंकि बर्रा उनके सारे सिस्टम पर जो है वो गालिब आएगा, और उसके लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ लोग जो काम करने वाले होंगे वो भी इस पर गालिब आएंगे। वो फतह यानी फतह उनकी होगी, बर्रा की फतह होगी। और जाहिर बात है यानी यीशु मसीह बर्रा है जो हमारे गुनाहों को उठा के उसने ले लिया और अपना खून बहाया। वो बर्रा है जो हमारी खातिर ज़बा हुआ, वो बर्रा है जो हमारी खातिर सूली पर चढ़ा है। ठीक है ना जी। लूका रसूल की अंजील उसका 12 बाब और उसकी 31 आयत से जो है आयत से हम आगे देख सकते हैं। खुदावंद ने कहा कि हमने क्या करना है। अक्सर आप सुनते हैं ग्लोरी टीवी पे हम कहते हैं पहले ढूंढो तुम खुदा की बादशाही तो सारी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए जो हमें वक्त मिला है, इस वक्त हमने अपनी ज़िंदगियों को दुरुस्त करना है, खुदा के साथ जोड़ना है, अपना दिल यीशु को देना है और अपनी जिंदगी की डोर उसके हाथों में देनी है। फुल कंट्रोल, फुल जो सबमिशन है यीशु के हाथ में देना है। तो खुदावंद हमें क्या कहते हैं? पहले तुम खुदा की बादशाही को ढूंढो। सो I'd rather you read it quickly 31 onwards जी, लूका 12 लूका का और थोड़े से स्क्रिप्चर्स हैं एंड वी वांट टू वाइंड अप क्योंकि टाइम भी हो रहा है। 13 फिर 12 बाब 31 और 31 सॉरी मेरे पास बट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। आगे भी पढ़ते जाएं। आसमान का खजाना हमारे सामने आए, छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। छोटे गले, ठीक है ना। अपना माल असबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनवाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। 35 तुम्हारी कमरें बंद ही रहें, हर वक्त तैयार रहो और तुम्हारे चिराग जलते रहें फौजी बन के, है जी, ठीक है। और तुम उन आदमियों की मानिंद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हो कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाजा खटखटाए तो फौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो कमर बांधकर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। 38 और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम हो ताकि चोर किस घड़ी आ जाएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देगा। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम यानी यीशु मसीह आ जाएगा। मैं जैसे पढ़ती हूँ, but seek the kingdom of God and all these things shall be added to you. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Sell what you have and give alms, यानी कि give क्या कहते हैं, alms कहते हैं good gifts जैसे, है ना। Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heaven that does not fail, where no thief approaches nor moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Let your waist be girded and your lamps burning, and you yourself be like men who wait for their master when he will return from the wedding. He will return from the wedding, that when he comes and knocks, they may open to him immediately.
Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Surely I say to you that he will gird himself and have them sit down to eat, and will come and serve them. And if he if he should come in the second watch or come in the third watch and find them so, blessed are those servants. Amen. But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be broken into. So therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. See, चोर की तरह, जैसे अगर किसी के घर के मालिक को पता कि चोर ने कितने बजे आना है तो बिल्कुल तैयारी के साथ बैठेगा। इसीलिए खुदावन ने कहा कि जब वो आए हमें नंगा ना पाए, यानी कि हम कहीं भी हो सकते हैं, हम बाजार में हो सकते हैं, हम शॉपिंग कर रहे होंगे, हम हो सकता है सोए होंगे, we could be doing anything and we could be raptured। इसलिए हमें हर वक्त जो है तैयार रहना है। एक दो और आयत हैं, रेवलेशन 19:7-8, अगर हम उसे भी पढ़ लें तो बहुत प्यारा। अच्छा, ये तो हमें खुदा ने बताया कि हर वक्त हमें तैयार रहना है, क्योंकि किसी वक्त भी खुदा जो अपनी कलीसिया को उठा के लेके जा सकता है, किसी वक्त भी वो जो ट्रम्पेट है जो साउंड होगी, और वो हम कैसे पहचानेंगे, इसलिए हमें पवित्र आत्मा का जो है बपतिस्मा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो गवाही देगा, हमें बताएगा कि ये नरसिंगा जो है, क्योंकि बहुत झूठे नबी आएंगे, कहेंगे आओ चलें पहाड़ों में चलें, वहाँ एक बंदा है वो अपने आप को मसीहा कहता है, और लोग जो है बेवकूफ़ बन जाएंगे, उनके पीछे चले जाएंगे। ये जो झूठे नबी ये दावा करेंगे, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो ईसा मसीह आ गया है, लेकिन हमारा बताने का ये मतलब है ईसा मसीह ऐसे छुप के किसी एक छोटे से मुल्क में या एक छोटी सी बरादरी या एक सेक्ट के अंदर नहीं आएगा। वो उसका जब आना होगा तो शोर होगा, धूम मचेगी कि दूल्हा आ गया है, और एक पूरी दुनिया को बताकर यीशु जाएंगे कि मैं आया हूँ और अपने लोगों को अलग कर रहा हूँ। परमजीत वहां क्या कि खुदा यीशु मसीह जब आएंगे, जीसस क्राइस्ट, तो पूरी दुनिया उनको देखेगी। बेशक लोग कहते हैं कि हो जाए टीवी के जरिए देखे, लेकिन वो तो लिखा है कि वहां नूर होगा, नूर से पूरी आसमान पर सारी दुनिया, कुछ लोग जो उनके मुखालिफ होंगे, झूठ मारने वाले, वो अपनी छाती पीटेंगे, लेकिन दुनिया मातम करेंगे, लेकिन खुदा यीशु मसीह का आना कोई छुपा हुआ नहीं होगा, और किसी छोटे से सिटी के अंदर नहीं होगा, और वो भी इसराइल के बाहर नहीं होगा, ठीक है ना, कोई किसी मतलब शायद मेरे जहां से मैं आया उस शहर में किसी गांव में आ जाए, ऐसा नहीं है, इसराइल में उनका जो है आमद होगी, और सारी दुनिया अपनी आंखों से आसमान की तरफ देखेगी, वो नूर होगा। And here's something that was confirmed by Lord Jesus, और हम देखते हैं कि हाँ जी, जब मुकाशवा में देखते हैं प्रकाश की पोथी 19:7, उसमें लिखा, Let us be glad and rejoice and give him glory, for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready। तो जब यहाँ से रैप्चर हो जाएगा, सफराज़बी से पढ़ेंगे, आओ हम खुशी करें मसीहों के लिए, आओ हम खुशी करें और निहायत शादमा हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। ओके, ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब ये नरसिंगा फूंका जाएगा। हम जो खुदा के रूह से मामूर हैं, हम खुदा से रोज बात करते हैं, खुदा को जानते हैं, खुदा हमारे साथ कलाम करता है, तो जब खुदा का रूह हमें बताएगा कि नरसिंगा फूंका जा रहा है, और हमारे जो बदन है, ट्विंकलिंग ऑफ द आई, क्या आंख, जैसे हम आंख झपकते हैं, व्हाट इज इट, झपकते हैं, तो इतनी जल्दी क्विकली, इतनी ऐसे सेकंड्स में जो है हमारी बॉडीज जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, और हम ऐसी इसी तरह से आसमान पे उठाए जाएंगे, उड़ने वाले बन जाएंगे बल्कि। और ये कब होगा? जब जो है उसके बाद जो है 7 साल जो मुसीबतें, जो एंटी क्राइस्ट जो आएगा, जो इजराइल के साथ जब आप देखेंगे कि पीस ट्रीटी साइन हो गई है, वो जो है डैनियल नबी के मार्फत जो नबूवत हुई है, प्रोफेसी हुई है, उस पर भी करेंगे बात। मैं ज्यादा अभी इसमें नहीं फिल इन करना चाहती, बट लेकिन नेक्स्ट जो प्रोफेसी है उसमें बताएंगे कि जब ये कलीसिया उठा ली जाएगी और जमीन पे उस वक्त क्या हाल होगा। हम जब उठाए जाएंगे तो जिस दावत का जिक्र बरा करता है कि खुदा की हम दुल्हन हैं, अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 14, उसमें लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए। जब तुमने शक किया खुदावन पे, खुदा ने उसे तसल्ली दी, कहा कि देखो, मैं हाथ डाल के देख लो, तुम देख लो, मैंने सचमुच मैं वही यीशु हूँ जिसके कील लगे थे, मैं ही वो मुर्दों में से जी उठा। तो खुदावन ने कहा कि जब उन्होंने होली कम्युनियन भी लिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अब ये मैं जो शीरा, ये जो है जो दावत है, जो मैंने पास ओवर आपके साथ किया है, जो पुराने आयता में लिखा था, ये पूरा हुआ है वो, तो मैं ये इसको जो है
जब तक आपके साथ आप खुदा के घर नहीं आ जाओगे, जो मैंने मकान तुम्हारे लिए बनाए हैं, जो जगह बनाई है, जब तक तुम वहां नहीं आ जाओगे, मैं दोबारा तुम्हारे साथ इस तरह की दावत में शरीक ना होगा। सो अजीजों, जब हम उठाए जाएंगे, जैसे मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, तो वहां बहुत बड़ी दावत, बहुत बड़ी मेज लगी है, दावत है, बड़े की दावत है, और वहां फरिश्ते नरसिंगे फूंकेंगे। 2-4 तस्वीरें हैं, बड़ी एक्साइट करती हैं। देखेंगे कि कैसे फरिश्ते एंजल्स जो है, हमें जब चले जाएंगे तो हम वहां एक बहुत बड़ी बैंक्वेट होगी, लैम की कहते हैं कि ब्राइड जो है, बड़े की ब्राइड है, जो दुल्हन है, वहां हम खाएंगे, हम पिएंगे, खुदा के साथ खुशी करेंगे। और क्या होगा उस वक्त? वहां बड़ा शोर होगा, लेकिन जमीन पे नीचे लोग छातियां पीट रहे होंगे, मातम होगा। जैसे हमने बताया कि न्यूज रीडर्स जब आपको न्यूज देंगे, वो पढ़ भी नहीं पाएंगे, रोएंगे और उनसे उनके मुंह से बात नहीं, ऐसा वो माहौल यहाँ का हो सकता है। लेकिन होगा 7 साल की जो फिर बाद की जो वो बातें हैं, फिर वो एंटी क्राइस्ट का जब दौर आएगा, उसको अगले नेक्स्ट सबक में इसको कवर करेंगे। बिल्कुल सही कहा। जब रैप्चर होगा तो बहुत दुनिया में खौफ तारी हो जाएगा, और मसीहों के लिए तो ये नई बात नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन वो लोग जो मतलब इस बात को, रैप्चर के सब्जेक्ट को नहीं जानते, लेकिन मैं एक, हमारे पास 2-3 मिनट, कोई है आपके पास आयत? I just have 19:14. Revelation 19:14. 19:40 पढ़ लें ताकि हमारे पास। Then I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying to all the birds that fly in the midst of the heaven, come and gather together for the supper of the great God. Hallelujah. And the King of Kings and Lord of Lords. 19:17. 1917। फिर मैंने एक फरिश्ता को आफताब पर खड़े हुए देखा, आफताब सूरज के ऊपर, और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त, जोरावरों का गोश्त, घोड़ों और उसके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, ख्वाह आज़ाद हो, ख्वाह गुलाम, ख्वाह छोटे हों, ख्वाह बड़े हों। ये है खुदावंद की दावत। परिंदे, दुनिया की चीलें और वो गिद्ध जो है, वो पूरी दुनिया से बुलाए जाएंगे। जहां लाशें ही लाशें दुनिया में पड़ी होंगी, तो गिद्धें आएंगी, चीलें आएंगी, जो नीचे का ये नीचे रैप्चर के बाद जो नीचे का दुनिया का सीन ये होगा। लेकिन मैं 2 मिनट में ये कहना चाहता हूँ अजीज बहनों भाइयों, कि अगर तुसी दुखा चो बचना चाहते हो, कतलो गारत तो बचना चाहते हो, ठोकर खाण तो, मैं मत्ती दे 24 बाब दे विचों लै रहा, जे तुसी ठोकरां चो बचना चाहते हो, जे तुहानू अदालतां चो लैके जाण तो बचना चाहते हो, तुसी अदालतां दुश्मनियां तो बचना चाहते हो, ते झूठे नबियां तो बचना चाहते, गुमराह करन वालियां तो बचना चाहते, बेदीना कोल बचना चाहते, तुहाडी मोहब्बत ठंडी हो जाए उहदे तो बचना चाहते, ते सिर्फ साडे मसीहा कोल एक ही रस्ता है, 2 रस्ते नहीं, वो है उड़ के कलीसिया खुदाओं दे नाल चली जाओ। There's no other way. कोई पहाड़ भी नहीं बचाण, कहंदे खुदाओं ने कि मैं पहाड़ मैनूं बचा लो, लोकी पहाड़ां दे खोहां च खुदा पहाड़ो सानू बचा लो, इन्हां दुश्मनी चो, ए हड़ तो बचा लो, ए जलजला जेड़ा आया है ओदे तो बचा लो। बहुत सारे लोग छाती पेट के लुकण दियां थावां लभणगे, लेकिन अजीज भैणों भाई, इस तो पहले कि इहो जी सिचुएशन दुनिया ते आवे और तुसी खुदावंद दे नाल, यसू मसीह दे नाल ओदा इस्तेमाल करने लई तैयार हो जाए। देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका नहीं इस दुनिया तो बचन दा, सिर्फ यसू मसीह निजात दिंदा है। और तुसी ओ अपनी कलीसिया नूं, जेड़े ओनू मनन वाले ने, जेड़े ओनू स्वीकार कर लेंदे ने, ओनू मनदे ने कि ओही बचा सकदा है, निजात दिंदा, मुक्ति दाता है, उन्हां नूं ओ कढ के इस जमीन चो चुक के लै जाएगा, उड़ा के लैके चले जाएगा। ठीक है ना? बदलां दे तख्त ते बैठ के यीशु राजा आवेगा, सानू भी हवावां दे खटोले ते उड़ावेगा। सचमुच इसी तरह खुशी खुशी से जो है एक दूसरे को बताएं, हमारे दिल घबराए नहीं, बल्कि खुशी से, जैसे सरफराज ने कहा कि उस रैप्चर के लिए हम तैयार हो जाएं। जो मेरे पीछे तस्वीर है, इस तरह के उड़ के जाना है और हमने यीशु का जो है वेलकम करना है। जय मसीह की।